জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অন্যটা খবৰ মুছলমানসকলৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে 90 বছৰীয়া এখন আইন এটা নিখাৰ ভিতৰতে ধ্বংস কৰি পেলাইছে বিজেপি চৰকাৰে এনে ধৰণে এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসম চৰকাৰে লোৱা মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্টৰ বিৰোধী ডিভোৰ্স এক্ট বাতিলৰ বিৰোধিতা কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আৰু মন্তব্য কৰিছে যে বাল্য বিবাহ কৰা অধিকাংশই মুছলমানক মিছাতে বদনাম কৰিছে অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে অসম চৰকাৰে মুছলমানক আক্ৰমণ কৰিছে মুছলমানক মিছাতে অপযুক্ত কৰিছে নিখা 12 বজাত 90 বছৰীয়া পুৰণি আইন বাতিল কৰিছে চৰকাৰে যিখন 90 বছৰীয়া এখন পুৰণি আইন সেই আইন এটা নিখাৰ ভিতৰতে বাতিল কৰিছে অসম চৰকাৰে অসমৰ 51% মুছলমানৰ 20% দৰিদ্ৰ অসমৰ মুছলমানৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত খনা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে বিশেষ বিবাহ আইনত নিকাহৰ সুবিধা আছে জানো বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া ওৱেইচিয়ে অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে ওৱেইচিয়ে উভতি ধৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মুছলমানৰ নিকাহ প্ৰথাৰ আইন বাতিলৰ বিৰোধিতা আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া অসম চৰকাৰে যি কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে 1935 মুছলমান মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্ট বাতিলৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত সদনত উল্লেখ কৰিছিল যে মুছলমান মহিলাৰ সৈতে হোৱা অন্যায় কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব কাজীসকলে মুছলমানৰ কথা চিন্তা নকৰে কাজীসকলে মুছলমান মহিলাসকলৰ কথা চিন্তা নকৰে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ মতামত মতে অশোক স্তম্ভ লগা এখন চকীত বহি এক বিবাহ প্ৰথা এক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে আৰু সম্পৰ্ক তেওঁলোকে ভাঙিও পেলায় মুহূৰ্ততে আৰু সেয়া কেৱল কাজী আৰু পৰিয়ালৰ মতামতত হয় সেই বিষয়টোত অৰ্থাৎ 1935 মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্টৰ মতে মুছলমান মহিলাই ন্যায় নাপায় মুছলমান মহিলাসকলৰ মতামত গ্ৰহণ নকৰাকৈ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি দিয়া হয় আৰু মুছলমান মহিলাগৰাকীৰ মতামত গ্ৰহণ নকৰাকৈ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বা কোনো পুৰুষে যদি অভিযোগ কৰে তেনেহ'লে সেইগৰাকী মহিলাৰ বিচ্ছেদো কৰি দিয়া হয় এনে অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ লগত অন্যায় হয় আৰু অন্যহাতে সৰু সৰু নাবালিকা কণ ছোৱালীও বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব লগা হয় এই মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্টৰ জৰিয়তে কিন্তু এই এক্ট এতিয়া বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মুছলমানৰ লগত অন্যায় কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু যাৰ বাবে এই আইনখন বাতিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু সকলো লোক ভাৰত যিহেতু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে ভাৰতত থকা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ দৰে অসমতো একেধৰণে প্ৰতিগৰাকী লোকে যাতে সেই বিশেষ বিবাহ আইনৰ দ্বাৰাহে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে বিবাহ পাশত একেখন বিশেষ আইনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব পৰাকৈ এই আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ মতে 90 বছৰ দিনীয়া এখন আইন এটা নিশাৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে বাতিল কৰি দিয়া মানে সমগ্ৰ মুছলমান লোকসকলক অপমান কৰা সমগ্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক অপমান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানসকলক কিয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে প্ৰকৃততে কিমান মুছলমান মহিলাৰ লগত অন্যায় কৰিছে এই আইনখনেৰে প্ৰকৃততে কিমান নাবালিকা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে এই আইনখনৰ জৰিয়তে সেই উত্তৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ওচৰত অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আছে নে নাই প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আৰু সমান্তৰালভাৱে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এক বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যিমান নাবালিকা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে ইয়াৰে অধিকাংশই হৈছে অমুছলমান অৰ্থাৎ মুছলমান নাবালিকা কিন্তু বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা খুব কম পৰিমাণেহে আছে বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে এই আইন বাতিলক লৈ অসম চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ তুলি এই আইন সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে আৰু নতুন যে বিশেষ বিবাহ আইন অৰ্থাৎ বিশেষ বিবাহ আইনৰ জৰিয়তে অন্যান্য ধৰ্মৰ লোকসকল যিদৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় মুছলিম লোকসকলো একেদৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব লাগিব এই আইনত মুছলিম বিবাহ নিকাহ প্ৰথাৰ সন্দৰ্ভত কিবা জ্ঞান বা কিবা অভিজ্ঞতা আছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে মুঠতে কেইবাটাও মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভোৰ্স এক্ট সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি এনেধৰণে এতিয়া অসমৰ বিজেপি চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে majority
ऐसा है ना कि जब हम सच्चाई को बयान करते हैं तो वोट बैंक हो जाता है, और नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से कर रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए, तो उसकी कोई बात नहीं करते। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, वो भी रात के 12 बजे वो कानून खत्म करे, जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहां के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी, और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या, बताइए मेरे को। भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेक्युलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिया, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा? और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, जरूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए समझो, आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ आप ही तो आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। और इसी चौथी बात यह है कि भारत सरकार का डेटा है 12 लाख बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा को, बताओ 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही। पांचवी बात यह है कि फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड आसाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आसाम के मुख्यमंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा, क्या यह बात सच नहीं है कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होते। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे आप। और 2036 माने 2036 में वहां पर मर्द ज्यादा रहेंगे, महिला कम रहेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, यह भी आप डाल देंगे मुसलमानों के गले में। और आखिरी बात यह है, ये कानूनी बात आपसे कर रहा हूं कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वाइडेबल है, वाइड नहीं होती शादी, ये कानून है। तो किसके कान में फूल लगा रहे बीजेपी आरएसएस वाले। और ये क्या बात है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हो उसको, ट्राइबल्स को। क्यों देंगे एक्सेप्शन ट्राइबल्स को आप एक्सेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है। तो मकसद एक ही है कि
आसाम के मुसलमानों का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। अब कैसे शादी होंगी बताइए? निकाह नहीं होगा, कैसे शादी करना? स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह होता क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर मिलता क्या लेडीज को? तो ये मकसद उनका यही है, ये इनकी नफरत है, इनका काम ही है। और आसाम के मुख्यमंत्री ज्यादा हैदराबाद को आ रहे, तेलंगाना को आ रहे। अरे पहले अपने स्टेट में आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप उसको एक्सेप्ट करो। आप ये है। अभी तो आप मेरा रिएक्शन पूछे, रिएक्शन दे दिया। अब आगे क्या करना है वो आसाम की जनता करेगी, हमको जो करना है करेंगे, नहीं करेंगे। मगर आपका सवाल का भी जवाब दिया हूं मैं। देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, उसमें भी क्या कर दिए? एक्सेप्शन दे दिए, ट्राइबल्स को अप्लाई नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के एक्सेप्शन वो अप्लाई करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट के एक्सेप्शन। तो भाई जब एक्सेप्शन दे रहे तो यूनिफॉर्म कहां है? वो आप सिर्फ मुसलमानों को उनका रिलीजियस कैरेक्टर छीनना चाह रहे, मेरी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे आप। ये कैसे होगा बताइए आप? अरे अच्छा, उस उत्तराखंड के कानून में अब आप ये बोल रहे कि अगर इस्लाम में यह है कि अगर कोई औरत विडो हो जाती है उनके शौहर के इंतकाल के बाद, तो इद्दत के दिन रहते 4 महीने। आप बोल रहे वो भी अप्लाई नहीं होगा क्या? जबरदस्ती शादी कर देंगे उसकी? आप करना क्या चाह रहे? आपकी नफरत है ये, नफरत है ये। अच्छा, राइट लिव इन रिलेशनशिप है, रजिस्टर करना, प्राइवेसी का जजमेंट क्या होगा फिर पुट्टू स्वामी का? ऐसा है।